what we are going to talk about is advances in bioengineering, perspectives from food biotechnology. Since I'm more inclined towards food and everything else, and it is one of those regions of the biotechnology which is very much in vogue at the moment. It's one of the most ones which is eclipsed as well and in the vogue as well. Why I say eclipse? Because ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप देख नहीं सकते कि कितना काम हो रहा है इसके अंदर। इतना काम है कि बेसिकली जो है आप सब लोग जो हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं उन सबको ये इंडस्ट्रीज जो है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी है कि बेसिकली इनके अंदर हमारे को समझ में नहीं आता कि हम वहां पे जाके करेंगे क्या, हम कैसे अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर हम एक बच्चे के साथ बात करते हैं जो अभी बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, हमें बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज इन, बट इंडस्ट्री को क्या चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आई टीच फूड बायोटेक्नोलॉजी इन माई डिपार्टमेंट एज वेल, सो आई थिंक एक थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव है मेरे पास कि बच्चों को कौन सी चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं करते अपने, और कैसे हम जो बेसिकली आप लोगों को यूजी के अंदर पढ़ाते हैं या पीजी के अंदर आपको जो पढ़ाते हैं वो कैसे इकट्ठा होता है, और उसके बाद आप उसको जो है कल को इंडस्ट्री में जाके इस्तेमाल में ला सकते हैं कि हाँ ये करना है हमने, इस तरीके से आप कर सकते हैं। So I think everyone has a basic understanding of plant tissue culture and animal tissue culture at this point. Anyone who doesn't know what animal cell culture is, what plant cell culture is, वो अगर अपना हाँ हैंड रेस करना चाहता है या किसी और चीज की बात करना चाहता है तो अभी पूछ सकता है, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। है कोई ऐसा बच्चा? So can you brief a bit, because I have not done it practically or in lab. I'm from microbiology background. You're That's from why. you're from microbiology background. ठीक है, okay. So when we start from plant tissue culture and animal tissue culture, our basic idea is basically to grow the single cellular organism from a very very नहीं small नहीं, sample, because very small sample. हेलो, हाँ जी सर। बिकॉज एवरीबडी हैव ज्वाइन, मान लो सपोज कि अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड्स के हैं, सो दे शुड यस सर। check that video, previous video on cell culture and other things, otherwise main part छूट जाएगा, है ना? briefly या तो 1-2 मिनट maximum, because हाँ if they सर, are not बिल्कुल knowing they बिल्कुल। should visit our है ना हाँ जी channel, बिल्कुल। where free of course that different topic lecture on different topics are available. जो नहीं available है उसमें आप बता देंगे briefly तो ठीक है, otherwise ये टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर का है ऑलरेडी, है ना? जी सर। जी जी, अच्छा रहेगा वही। चलिए मैं बिल्कुल ब्रीफली उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब हम बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर या Processing एनिमल्स technology. Is त्रिलोक it like biotechnology or food processing technology? So it is more or less like going to be a lecture in metabolic engineering. Okay, like This is more or less going to be on strategies, basically how from we food are going to processing increase. Yes, sir. okay, the processing, how the packaging and food is processed. If you want to talk about that, what I'm basically going to be explaining in this is basically how we can increase the productions, how we are going to increase the production, what are the strategies which biotechnology utilizes for the increasing the production, what are the basic ideas, small ideas which we are going to take, we accumulate most ideas together and we increase the efficiency of our production processes to two folds, three folds, four folds, whatever, how much we can improve in that thing. It does have some portions on how we are going to work on the problems related to the biomaterials, or how we are going to do packaging industry and other things. But those are very small things. I'm not going to be doing on that. तो PHAs के ऊपर काम होता है वो वाला, वो PHAs के ऊपर जो काम है वो स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर आप कभी चाहते हैं कि वैसा बिल्कुल स्पेसिफिक आपको काम चाहिए तो आई कैन डू दैट एज वेल। ठीक है सर। So what this first slide, I'm going to make the very simple slide on this.
in biotechnology or in bioengineering, what we are trying to do is we are tweaking the existing life forms. We're tweaking the existing forms which are available to us. Let's say, for example, E. coli is available. For example, we have uh, tomatoes available. For example, we have brinjals available. We have everything else which is available, and we are going to utilize it in a manner, improving it at the stages कि basically हम इसको improve करेंगे, and then we will increase the production capacity in coming years, yeah, in coming stages, the stages which we are going to utilize. So there are very much there's like, for example, what we can take is a pigment. हम अगर टोमेटो के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को, लाइकोपेन को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज इट सो दैट कल को हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेन डेवलप हो जाए जिसके अंदर हमारे पास लाइकोपीन की जो कंटेंट है वो मच हायर, जो हम कल को जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसे यूटिलाइज कर सके कि हाँ ठीक है, वट एवर प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू डू. लाइकोपीन इज वन ऑफ दोस precursor molecules which could be utilized in cancer research. जो कैंसर के जो हम ड्रग्स बनाते हैं उसके अंदर जो है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है. उसके बाद आप उसकी जो है जो उसे केमिकल इंजीनियरिंग में ले जाके उसकी केमिस्ट्री चेंज करके आप उसके साथ जो है आगे स्पेशलाइज्ड जो है आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप डेवलप कर सकते हैं. So what I'm going to do is I'm going to start from one of the most easiest ones, those which are taught in the UG platform. अगर आपने कभी यूजी प्लेटफॉर्म के अंदर आपने जो है फूड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हो या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर आपने कभी स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट पढ़ा हो, स्ट्रेन सिलेक्शन पढ़ा हो, तो बेसिकली सबसे फर्स्ट पॉइंट जब हम करने की कोशिश करते हैं, जब हम नेचुरल प्रोड्यूसर्स को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनके बाद उस सेल लाइन को या उस स्ट्रेन को हम जो है इम्प्रूव करने की तरफ की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग एट दैट पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू choose a single strain which is one of the most economically viable to produce one such thing. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक देना चाहूँगा. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी सैफरन की बात की हो, सैफरन जो है वो बेसिकली अगर आपको सैफरन को प्रोड्यूस करना है, 20 ग्राम ऑफ क्रोसेटिन, वन ऑफ द पिगमेंट्स which is generated in Crocus sativus, उसको अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं 20 ग्राम्स, तो उसके लिए आपको 1,10,000 से लेके 1,70,000 फ्लावर्स की इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी और 400 आवर्स ऑफ हार्ड लेबर जो आपको चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्शन कर सकें. नाउ क्रोकस इज वन ऑफ दोस, आई थिंक सैफरन के बारे में मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि सैफरन कितना इंपॉर्टेंट है. सैफरन के लिए हमने जो है, अगर आप कभी IHBT की तरफ जाते हैं, CSR के इनिशिएटिव्स की तरफ जाते हैं, तो उन्होंने उसकी प्रोडक्शन जो है उसे इस्तेमाल किया है. उन्होंने बेसिकली उसको जो है डेवलप किया है कि बेसिकली एक आपके पास जो है कंटेनर है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, सारा कुछ जो है उसको मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं और उसके अंदर हम जो है उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. एंड व्हाट दिस हैज़ अचीव्ड इज बेसिकली कि हम जो हैं आज इस चीज़ के अंदर सक्षम हो सके हैं कि बेसिकली चाहे कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केरला हो, चाहे US हो, चाहे कोई भी एरिया हो, वहाँ पर हम जो है क्रोकस को प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो हम राउंड द ईयर प्रोड्यूस कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन कि बेसिकली वी कांट डू दिस इन स्मॉल, वी हैव टू बी लिमिटेड टू द कश्मीर की वहीं पे प्रोडक्शन होगी उसकी. एंड दिस वाज वन ऑफ दोस प्रोड्यूसेस which was highly adulterated, बहुत ज़्यादा adulteration थी इसके अंदर. लेकिन by the utilization of bioengineering, this is the one of the most simplest bioengineering. This is basically engineering in the phase in the type of plant tissue culture, cell culture, जहाँ से इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है. इसके अंदर जो बेसिकली हमारे को यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है वो है सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग सेल लाइंस, जिसको हम बाद में ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारे पास जो है जो कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर हम कंडीशंस दे सकें, उसको हम प्रॉपर जो सेल्स हैं उन्हें इमोबिलाइज कर सके. अगर हम उसको बायोरिएक्टर के अंदर डालना चाहते हैं तो बायोरिएक्टर की जो है स्केल अप करते हैं उसके अंदर, उसको हम चूज कर सकें कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होगा. आई एम गोइंग टू से मेटाबोलाइट इन दिस बिकॉज क्रोसिटिन is a metabolite of secondary metabolite of crocus.
ऑल्दो वी यूज क्रोकस मेजरली, लेकिन क्रोसिटिन जो है वो उसकी कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्रोकस ज़्यादा अच्छा माना जाता है. So these are the traditional ones. These traditional ones are basically utilized, and in these traditional ones, there are now two more, what we can say, specialized or major upcoming fields which are coming into this. One of them is bionic innovation. This is called elicitation. And the second is continuous release of desired bioreactive compound or exudation. So, elicitation. When we talk about elicitation के लिए अगर आप पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत पड़ेगी वो ये है कि जो भी हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जो भी हम जैसे हमने क्रोसिटिन की एग्जांपल लिया, क्रोसिटिन इज जनरली अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज इन जनरल अ व्हाट वी कैन से रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स टू पैथोजन, जो कि बेसिकली उसके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद जो है ये चीजें प्रोड्यूस होंगी. सो बेसिकली इसके अंदर हम जो है स्ट्रेस जो है उसको एक एलिसिटेट करने के लिए जो है यूटिलाइज करेंगे, स्ट्रेस एलिसिट करेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एलिसिटेशन ऑफ द स्ट्रेस, तो बेसिकली मोस्टली इसका जो एक मेथोडोलॉजी है वो ये है कि बेसिकली मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है इनका एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होता है जो सिक्वेंशियल होता है. दिस इंक्लूड्स बेसिकली फॉस्फोराइजेशन, डीफॉस्फोराइजेशन, calcium enhancement, or influx of potassium or H positive ion. There are so basically this is the trigger for the biosynthetic secondary metabolism to increase. So basically, when we talk about biotic elicitors, these can be differentiated into four classes. One of the classes is basically exogenous compounds secreted by microorganisms and insects while attacking plants. So basically, these are those chemicals which are produced by the attacking agent, which is basically attacking it. For example, you can the simplest example is basically from cochineal insects. Cochineal insects were basically utilized for the red pigment. तो जब वो बेसिकली जो है वो आप उनके ऊपर जो है स्ट्रेस की कंडीशंस आती थी तो वो अपने अंदर जो है वो रेड पिगमेंट को अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं. So this is basically one of those examples. The second is exogenous compounds formed during the degradation of microbial cells by plant enzymes such as fungal or bacterial lysates and polysaccharides of the molecular microbial cell wall, chitin or glucans. The third is basically plant cell wall fragments degraded by pathogens. And the fourth and the last one is basically intracellular proteins or compounds synthesized by plant in response to the pathogen attack or abiotic stress. Example for this is basically plant hormones. These are basically those small things which could be utilized, which these are the ideas which are basics of elicitation. One of the examples for this is basically when we can utilize abiotic parameters for this. The abiotic parameters which could be utilized are basically heavy metals, UV radiation, and inorganic salts, which could be utilized for activation of secondary metabolites. Now we are coming up to exudation. Now exudation is basically utilized when we are going to store in the different tissues where the isolation is generally difficult. So what we are trying to do is we are making a stress condition. मेटाबोलाइट जो है हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं. मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होने के बाद वो जो है आपके उसी सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइज हो रहे हैं. थिंक ऑफ दिस इन बायोरिएक्टर सिस्टम. बायोरिएक्टर सिस्टम है आपके पास एक पूरा, जिसके अंदर बेसिकली आपने जो है जो पैकेज कर दिया, पूरा पैकेज करने के बाद जो है पूरे के पूरे स्ट्रेस आपने जो है उस पूरे के पूरे बायोरिएक्टर सिस्टम्स को आपने दे दिया. लेकिन उसके बाद आपका जो प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है, जो हम मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बेसिकली आपका किसी न किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो इमोबलाइज हो रखा है. सो उस चीज़ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? उसको चेंज करने के लिए हमारे पास पहली चीज़ है मेम्ब्रेन परमियलाइजेशन या परमिएबिलिटी इंक्रीज. इसके लिए हम जो है केमिकल एजेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बेसिकली उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करती है. One of the examples, you can take any example for of this, organic solvents like Tween20, DMSO, isopropanol, then Triton X. So there are a lot of things. ठीक है, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं.
Alternatively, we have another methodology for this, which is basically physical approaches. The physical approach is generally ultrasonic, pulse electric field, or high hydrostatic pressure, which could be utilized. Second part is basically when you don't want to do this, when you don't want to do this because आपकी जो है डाउन स्ट्रीमिंग जो है उसके कारण ज़्यादा इकोनॉमिक्स उसकी खराब हो रही है. अगर हम इन फॉर एग्जांपल व्हाट वी यूज इज अल्ट्रासोनिकेशन कर दिया आपने, अल्ट्रासोनिकेशन करके आपने वेसिकल्स को जो है ब्रेक डाउन कर दिया, वेसिकल ब्रेक डाउन हो गई, आपका जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो बेसिकली आपका आ गया मीडिया के अंदर आने के बाद अब उसको जो है सेपरेट करना डाउनस्ट्रीमिंग के अंदर, अगर आप उसे एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, अलग करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको. अब इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है. अगर हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो देन व्हाट वी कैन डू इज इन सितु एक्सट्रैक्शन. अब इन सितु एक्सट्रैक्शन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर सॉल्युबिलिटी. आप सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी कौन सी चल सकती है उसके अंदर. फॉर एग्जांपल आप एन हेक्साडिकेन डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर आप लिक्विड पैराफिन का लिक्विड सिस्टम बनाएं, एक सेपरेशन फनल, एक तरह से जैसे हम सेपरेशन फनल के अंदर जो है एक सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जो है अलग कर लेते हैं एक दूसरे से, वही एक सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो है आपका जो मेटाबोलाइट है जो आप जैसे आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आप रिमूव करवा देते हैं ताकि आपके आगे जो है वो यूटिलाइजेशन के अंदर आ सके. This is one of the most easiest examples which I have given, N-hexadecane. Third one is basically जब हम basically specific transport mechanisms को use करते हैं, for example vesicular transcracking, या फिर membrane transporters, या फिर हम जो है glutathione S transferase को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. लेकिन ये जो है ऐसे methods हैं जो basically specific हैं transporters के लिए. इनको ना तो हम इनका प्रॉपर मैकेनिज्म समझ पाए हैं अभी तक कि बेसिकली ये किस तरीके से पूरे इतने बड़े सिस्टम में काम करेगा. स्मॉल सिस्टम्स में जो समझना है इसको बहुत आसान है कि ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स इसका इस तरीके से चलेगा. लेकिन जैसे जैसे हम इस सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, 50 लीटर्स में जाते हैं, 200 लीटर्स में जाते हैं, 1000 लीटर्स में जाते हैं, जैसे जैसे आप बड़े सिस्टम में जाएंगे यू विल फेस मच बिगर प्रॉब्लम्स विद दिस सिस्टम्स, और ये सिस्टम्स फेल भी हो जाते हैं वहाँ पे जाके. That is one big issue which you can't basically say at laboratory scale. Laboratory scale के अंदर सारा कुछ सही तरीके से चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसे आप इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाएंगे you will face these problems. Now what I have tried in this portion before this is कि बेसिकली हमने जो है प्लांट टिश्यू कल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की है. प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ही जो ट्रेडिशनल हमारे पास मेथड्स हैं उन्हीं को हमने जो है थोड़ा थोड़ा ऑल्टर करने की कोशिश की है. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वी आर गोइंग टू यूटिलाइज मोर बायोटेक्नोलॉजिकल या बायो इंजीनियरिंग के पाथवेज को. अब बायो इंजीनियरिंग के पाथवेज के अंदर सबसे ईजीएस्ट पाथवे जितने भी हम यहाँ बच्चे या जो हमारे लर्न प्रोफेशनल्स होंगे वो इसके ऊपर बात करेंगे तो वी विल फाइंड दैट हम सबसे पहले म्यूटाजेनेसिस की बात करना चाहेंगे. म्यूटाजेनेसिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच वी कैन यूटिलाइज. एंड ये जो है हम यूटिलाइज करने के लिए आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी. आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिस की एग्जांपल होगी, आपके पास पेनिसिलियम की एग्जांपल इसमें अवेलेबल होगी. जब हम बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं उसके अंदर वी हैव यूवी मेथड्स, वी हैव एनजीटी मेथड्स, वी हैव इथाइल मीथेन सल्फोनेट EMS मेथड, जो बेसिकली इन सब चीज़ों के अंदर एग्जांपल्स हैं. Not just this list is not basically exhaustive. I'm not giving exhaustive list in this, but what I'm trying to give is one of the most small examples for this. So there are drawbacks in this. The drawbacks are basically आपके mutagenesis जब आप strain improvement करते हैं, जो आप mutagenesis करते हैं वो एक generation से second generation के अंदर कई बार नहीं आ पाता. We face those issues in industry regularly. So what we can do about it, how we can do this. So basically what we are trying at that point, the next logical step is basically to increase the knowledge of impact factors. हमें impact factors का पता होना चाहिए और उसके बाद एक comprehensive policy बनाते हैं जो basically कोशिश करती है कि हम कैसे optimization को कर पाएंगे.
ये सारे का सारा जो चीज़ है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिकली अगर जैसे जैसे हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके अंदर जो यूजी पोर्शंस के अंदर जो पढ़ाया जाता है, ये वही वही के आसपास है। बट द थिंग इज, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है एडवांसमेंट, थोड़े एडवांस टॉपिक्स उसके अंदर साथ में मैंने जोड़ने की कोशिश की है। सो व्हाट वी कैन डू, अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर व्हाट वी कैन ऑप्टिमाइज, इफ वी रेफर टू बायोकेमिकल या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बुक्स, डोरैन को कर लेते हैं, स्टेफानोपोलोस को करके देखते हैं, तो द जनरल एस्पेक्ट्स आर बेसिकली पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स जिनको हम ऑल्टर करते हैं, या फिर हम जो है मीडिया को ऑल्टर करते हैं, या फिर हम जो है इन्वायरमेंटल हो गए, इसके अंदर इन्वायरमेंटल के सारे पोर्शंस कंप्लीट हो गए, एजिटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सबस्ट्रेट्स को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, कई बार मॉइस्चर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एबायोटिक सिस्टम, बायोटिक सिस्टम, टेम्परेचर, पीएच, एजिटेशन, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन इसके आगे क्या है, इसके आगे अब हमारे पास जो है, यहाँ पर हम कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर से जो यूटिलाइज होने वाली मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उन्हें इस्तेमाल करने लग पड़े, जैसे कि RSM, ANNs। अब ये टर्म्स जनरली जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हम इनको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको शायद ANNs पढ़ाते होंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे हम RSM कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वो वहाँ से उठाई हुई टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल यू कांट डू एनीथिंग फॉर कंप्लीट सिस्टम्स। ये नहीं है कि पूरे एक वन solution will fit everything. So what you need after that is basically you need to have special novel technologies. Some of the novel technologies for this is basically we have liquid state fermentation, LSF कहते हैं उसको, लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन जो है उसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मेम्ब्रेन सरफेस लिक्विड कल्चर अवेलेबल है, जिनको हमने डेवलप किया है इस चीज़ के लिए, ताकि हमारे पास न्यूट्रिएंट मास ट्रांसफर लिमिटेशन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। इसके अलावा देयर इज मॉडिफाइड सिस्टम्स वेयर सेल्फ इमोबिलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन बायोसरफेस लिक्विड कल्चर को हमने डेवलप किया, जिसके कारण जो है आपकी अपर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन and the other side of the contact for the liquid medium supplement the nutrition. Now what we are trying to do is हम न्यूट्रिएंट मीडिया को जो है वो अपने जो हम मोल्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्पैजिलस को, उसको अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहे हैं इसके अंदर। ये अब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी जो है ये किस तरीके से हमारा काम करती है कि बेसिकली हमने जो मेम्ब्रेन है, जो हमने अपना स्ट्रेन डेवलप करवाया है, उस स्ट्रेन को जो है हमने इस तरीके से डेवलप किया है कि उसकी जो है सेल एंट्रैपमेंट और अब्जॉर्प्शन मेथड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रखे हैं, वो मिमिक कर रहे हैं बेसिकली सॉलिड स्टेट एनवायरनमेंट को। अगर हम इसी चीज़ के अंदर एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर हम कल्टीवेशन करते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स की जो फोटोट्रॉपिक है, उनको अगर हम यूटिलाइज करते हैं कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और ज़ैंथोफिल्स के अंदर भी हम स्पेसिफिकली पेरिडिन की बात करने लगे हैं, तो जब हम पेरिडिन की बात करते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर हाइड्रोडायनामिक स्ट्रेस आता है। हाइड्रोडायनामिक स्ट्रेसेस बेसिकली क्योंकि हम जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बायोरिएक्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो प्रेशर जो है उसका, जो पानी का प्रेशर उसके अंदर बन रहा है, वो प्रेशर ही जो है वो हमारे जो डिनोफ्लैजिलेट है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। उसके कारण जो उसकी एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके कारण what we the issue we get is basically equivalent to the one we get in the algae, जहाँ पर बायो फिल्म या शीट लाइक सर्फेसिस बन जाती हैं, जिनके कारण जो है आपके न्यूट्रिएंट की इनटेक जो है उसके अंदर दिक्कत आती है। तो इस तरह के सिस्टम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? तो इस तरह के सिस्टम के अंदर हमने जो बेसिकली फोटोबायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल है, उसके अंदर जो हम सप्लीमेंटेशन करते हैं सिस्टम के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स की, जिनके साथ आपका जो बायो मेम्ब्रेन सरफेस है उसके ऊपर आपका जो लिक्विड इंटरफेस है वो इतना अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है कि न्यूट्रिएंट जो है आपके डिनोफ्लैजिलेट को मिलना शुरू हो जाता है। दिस इज अ केस इन सस्पेंशन कल्चर्स। The next approach which I'm going to talk about is rational engineering of natural producers, mining which methodology they are using? It is using. Yes, sir. Your audio is not that clear.
योर ऑडियो इज नॉट दैट क्लियर. अगर आप ऑडियो थोड़ा सा क्लियर करके बताएंगे तो फिर मैं उसका एग्जांपल आपको पूरा सही से बता पाऊंगा. No, methodology. Which methodology they are implementing in this model, sir? Like, can you? You are talking about MSLC, na? Yes, sir. Membrane surface liquid culture. Yes, sir. Yes. So the issue, the basic example for this is dinoflagellate. तो dinoflagellates की जब हम यूटिलाइज करते हैं फोटोबायोरिएक्टर्स के अंदर, तो उसके अंदर जो हाइड्रोडायनेमिक स्ट्रेस है, जो बेसिकली सिस्टम के अंदर आपके पास ऊपर पानी है, जो हाइड्रोडायनेमिक जो स्ट्रेस है पानी का, वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है न्यूट्रिएंट की या अपटेक के अंदर. Now this is a very specific problem which we are going to face when we are utilizing that kind of a system. उसके अंदर आपको जो है उस सिस्टम के अंदर आपको जो है वो, जैसे हम आपने कभी बायोनिक आपने जो है वो सरफेक्टेंट्स के इस्तेमाल को देखा होगा कि सरफेक्टेंट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो बायोफिल्म जो है वो प्रॉपर ना बन पाए. आई थिंक आपने इस चीज़ को कभी चीज़ की जब हम बेसिकली एंट्री लेवल बायो रिएक्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम फोमिंग की इशू को हम एक कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली उसके ऊपर जो है एक हल्का सा जो है अपना सरफेक्टेंट डालते हैं ताकि फोम ना बने उसके अंदर. नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फोमिंग इज बेसिकली टू रिड्यूस द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास जो बेसिकली बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो बबल्स हम चाहते हैं कि ऊपर जाके ही बने, वो सारे के सारे जो है ऊपर क्लियर हो जाए और फोमिंग ना हमारे पास प्रॉब्लम है. लेकिन micelling is one of those very easy methods which we can utilize to increase the absorption at the surface membrane. जो हमारी सिस्टम के जो हमारे पास जो dinoflagellate का सिस्टम है उसके अंदर जो हमारे पास बायोफिल्म की प्रॉब्लम आ रही है, जो बेसिकली हमारे dinoflagellate के ऊपर प्रिपेयर हो रहा है, उसको हम अब जो है डिफ्यूज करना चाहते हैं एज सून एज इट इज फॉर्मिंग. उस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम जो है उसके अंदर एक ऐसा केमिकल डालने की कोशिश करते हैं जो बेसिकली आपका जो है सरफेक्टेंट क्लास में से ही आता है, जो बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर जाकर जो है उसको डिसॉल्व कर लेता है. और डिसॉल्व होने के बाद आपका जो है जो dinoflagellate है उसके ऊपर बेसिकली वो जो बायोफिल्म नहीं प्रोड्यूस हो रही, उसके कारण आपका जो है वो जो न्यूट्रिएंट का अपटेक है, जो न्यूट्रिएंट बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर यूज करता है, उसको एड मिल जाती है. दिस इज नॉट बेसिकली फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दैट बेसिकली हम जो है मेटाबॉलिक जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं. हम मेटाबॉलिक बेनिफिट नहीं यहाँ पे ले रहे हैं, हम बेसिकली मास का ट्रांसफर, मास का जो है वहाँ पर बॉडी मास जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जो dinoflagellate वाला है उसके अंदर हमारे पास जो है जितनी ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस होगा उतना ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा है. आई होप आई हैव गिवन एन आंसर फॉर दिस. If you require exact name for that, the dinoflagellate I'm going to talk, I was talking about was Symbiodium. So, and the biomass yield. आप कंटिन्यू करिए, वो क्वेश्चन पूछ कैसे. ओके, सो नो इशू. तो बेसिकली सिम्बायोडियम के अंदर हम जो है वो पेरिडिन प्रोड्यूस करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं, और हमारा जो बेसिक आइडिया है उसके अंदर वो यही है कि बायोमास जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो, बिकॉज एट इन दिस सिस्टम बेसिकली हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट ही ये बात है कि बायोमास सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो. नेक्स्ट अप्रोच इज बेसिकली जब हम बेसिकली नेचुरल पाथवेज को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द लॉजिकल अप्रोच. We can't do everything in the bioreactor. We can't do everything correct in the bioreactor systems or strain-based systems. Now, what we require is basically pathway analysis. We need a pathway networks to be altered. अब इसके अंदर हम जो है वो सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वो अब आएगा पाथवे. ये बेसिकली जो हेडर है इसका, मैं हेडर चेंज करूँ एक मिनट. इसके हेडर जो है इसके अंदर आपका आएगा पाथवे माइनिंग. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पर करने ला रहे हैं पाथवेज को आइडेंटिफाई, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मैनिपुलेट इट बाय प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग. अब in principle we have entered metabolic engineering. So the first path is the mining of the natural pathway. So most common strategies which can be utilized in this is gene deletion, complementation. Then there is second is amplification of the target gene based on the conserved sequences
of known enzymes from other organisms and other methods derived thereof. Third is generally sequencing the DNA fragments flanking both sides of the known functional enzyme by genome walking. And the fourth one is generally using a known gene as a bait to reveal unknown regulator or related genes. So these are the four technologies. ये four technologies जो है हम मेरे ख्याल से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं since early 2000s. हम इसके अंदर जीन को अपने हिसाब से एडिट करते हैं, जीन की कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं. अगर हम जानते हैं कि बेसिकली डीएनए फ्रैगमेंट्स कौन से हैं उसके आसपास जो लगने हैं, तो हम जीनोम वॉकिंग भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर. Recent years after these developments, omics approach has entered into the things. Now omics approach is generally where we try to identify new genes, gene clusters, transcription factors, or anything which can increase the pathway for synthesis. ठीक है. अब इसके अंदर हमारे पास जो है पहली चीज जो थी वो ये थी कि इन द अर्लियर डेज ऑफ द ओमिक्स अप्रोच हम लेबलिंग करते थे. हमारे पास जो टेक्निक्स थी RIA थी या कोई और उस तरीके की हमारे पास टेक्निक अवेलेबल थी जिसके साथ हम बेसिकली उसको इस्तेमाल करते थे. बट द सिंस ओमिक्स द बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज इंक्रीज्ड, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ वी हैव एंटर्ड इनटू अनदर सिस्टम जहाँ पर हम पहले जीनोम को एडिट करते थे, फिर हमने ट्रांसक्रिप्टोम्स को जो है mRNA को डील करना शुरू कर दिया. वी हैव डन प्रोटियोमिक्स, वी हैव डन मेटाबोलोमिक्स. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज this pathway mining and genetic engineering is going to be a system based thing. यहाँ पर हम लोग तीन बेसिकली चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे. प्रोटीन, देन वी कैन यूज जीन. जीन तो हो ही गया, जीन तो नॉर्मल है. जीन हो गया, प्रोटीन को इंजीनियर करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स को उनको एडिट करने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो सके. एक अप्रोच इसके अंदर ये भी है कि एंजाइम्स को हम जो है इंजीनियर करने लगे. ठीक है. इसके अंदर मेरे पास आपके लिए एक एग्जांपल है. देयर इज अ फूड कलरेंट एंड अ फूड प्रिजर्वेटिव व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस. सो मोनास्कस जो है वो आपके रेड पिगमेंट को जो प्रोड्यूस करता है, जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता था फॉर लास्ट 1000 years. सो जब हमने इसको शुरुआत के अंदर लिया, जब इसके अंदर है एक स्पेसिफिक पिगमेंट है जिसका नाम है एजाफिलोन. तो एजाफिलोन के अंदर जब हम इसको डील करते थे तो हमें ये बात समझ में आई कि बेसिकली एम परप्यूरियस के अंदर हम इसको जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. और उसके अंदर हमारे को एग्जैक्टली इस चीज़ का पता चला कि बेसिकली कौन से जीन्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस के अंदर इसको यूज़ किया और उसके बाद में पोटेंशियल बायोसिंथेटिक पाथवे जो है उसे आइडेंटिफाई किया गया. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद दो चीज़ें क्लियर पता लगी. वन, डाउन रेगुलेशन ऑफ द सिट्रिन बायोसिंथेसिस, जो कि एक मेटाबॉलिक ब्रांच है उसकी बायोसिंथेसिस के अंदर. उसके साथ जो पिगमेंट की प्रोडक्शन है वो 60% इंक्रीज हो जाती है. सेकेंड, अगर हम बेसिकली डिसरप्शन करते हैं एर्गोस्टिरॉल बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर, तो भी हमारे पास जो है वो फोल्ड्स में इंक्रीज होता है. 2.06 फोल्ड इंक्रीज इन पिगमेंट प्रोडक्शन. और अगर इन दोनों टेक्नोलॉजीज को हम दोनों को इकट्ठा एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो व्हाट वी गेट इज कि हमारे पास 60% फ्रॉम वन विच इज बेसिकली मोर देन 50% इंक्रीज इन दैट एंड 2 folds in this, and this together takes it up to 4 and 4.5%, 4 to 4.5 folds increase in the production. So जो बेसिकली हमारे पास इसमें सिस्टम में आपको समझाना चाहता हूँ कि पाथवे माइनिंग जो है या जेनेटिक इंजीनियरिंग पाथवेज हैं, ये एक सिस्टम को इम्प्रूव करने के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि ये 400% तक हमारे को रिजल्ट्स दे सकते हैं. These are the examples for this. Now, I'm not talking about co-expression and everything else, but just basically identification of a जो आपका बायोसिंथेटिक पाथवे है, कौन सा बायोसिंथेटिक पाथवे इस्तेमाल होगा, और इसके बाद उस बायोसिंथेटिक पाथवे को ऑगमेंट करने के लिए हमने जो है एक ऐसा जो है बायोसिंथेटिक पाथवे को यूज किया जो कि उसकी डिग्रेडेशन को रोकता है. तो दोनों चीजों को एक को इंक्रीज करने के साथ और दूसरे को डाउन रेगुलेट करने के साथ हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन 4 times इंक्रीज हो रही है. सो
once we have started doing in this segment, then what we come to is another approach which is progress of the improvement of the previous one, is called heterogeneous biosynthesis. Now, heterogenic biosynthesis is basically, the first part is to identify the functional genes and the responsible pathways. Once you identify those, now you are going to do the removing the metabolic bottlenecks. आप बॉटलनेक को है जो है उसको रिमूव करते हैं. बॉटलनेक को इंप्रूव करने के साथ आपको जो है वो मेटाबॉलिक, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल आपको दी, उस एग्जांपल के अंदर एग्जैक्टली वही चीज बॉटलनेक को हमने खत्म किया था, डाउन रेगुलेट कर दिया था, जहां पर हमारे पास उस स्पेसिफिक मेटाबॉलिक जो मेटाबोलाइट था उसको हम जो है डिग्रेड कर रहे थे. सो in this way, in this point, what I'm going to introduce is, I hope everyone knows biochemistry. आपने बायोकेमिस्ट्री जो है वो अपनी तवज्जो अनुसार पढ़ के रखी हुई है, तवज्जो अनुसार आपको उस चीज़ का पूरा पता है. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम, अगर आपने कभी एक मेटाबॉलिक पाथवेज का एक पूरा जो है बहुत बड़ा चार्ट आता है, आई थिंक रोज का चार्ट आता है वो पूरा, तो अगर हम उसको एक बार कभी खोल के देखें, आई थिंक मैं अपनी क्लास के अंदर बच्चों को वो पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उसको एक बार तो स्टडी करके देखो, पूरी बायोकेमिस्ट्री तुम्हारी उसके अंदर बैठी है. तो उस चार्ट को देखने का एक फायदा ये है कि उस चार्ट से आपको एक बात समझ में आ जाती है कि पाथवे को अल्टर कैसे किया जा सकता है. अगर आप सफिशिएंटली उसको जो है देखते रहते हैं, उसको समझते रहते हैं, कौन सा पाथवे क्या आगे कर रहा है, कौन सा पाथवे कहाँ आगे कर रहा है, तो आपको ये पता चल जाता है कि पाथवे को अल्टर किया जा सकता है. अब वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर दिस. जब नॉर्मली हम नेचुरली सिंथेटिक पाथवेज को इस्तेमाल करते हैं जो यूटिलाइज कर सकते हैं, दिस इज एन अप्रोच फ्रॉम सिंथेटिक बायोलॉजी. सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम एक एंजाइम कहीं और से उठा के ला रहे हैं, उस एंजाइम के साथ जो है उस सबस्ट्रेट को जो है वो हम मेटाबोलाइज करा रहे हैं, और उसके बाद एक जो फेवरेबल सबस्ट्रेट है जो हमारे को चाहिए अपने मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी इनरिचमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कहीं पर इनसफिशिएंसी है आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट की या फिर डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट की, तो डीएमएपी कहते हैं उसको, तो वो एक बेसिकली बॉटलनेक है जिसके कारण आपके कैरोटीनॉइड्स प्रॉपर्ली नहीं बन रहे. तो अगर आप आईपीपी और डीएमएपीपी को आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर दोगे, कैरोटीनॉइड्स जो है उतने ज्यादा आके प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. कैसे करेंगे? कैसे करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना. आपने क्या करना है कि जैसे हम इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल इकोलाई के अंदर, तो इकोलाई के अंदर हम बीटा कैरोटीन की प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं. तो हमने क्या किया कि उसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिस निमोनिया, उसमें से एमवीए जो हमारे पास मेल्विनॉर्ड पाथवे होता है, उसका एक बॉटम पोर्शन का जो पूरा सेगमेंट है उसको यूज किया, उसको एज इट इज वहां पर आकर इंट्रोड्यूस करवा दिया उस सिस्टम के अंदर. और सेकेंड पोर्शन के अंदर हम उसके अंदर एंटीरोबैक्टीरियम फेसियालिस, उसका जो है टॉप पोर्शन एमवीए का, वो इस्तेमाल कर लिया. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस इज, हमने क्या किया कि हमारे पास जो इकोलाई के अंदर, अगर आप उस पाथवे को चेक करेंगे, उस पाथवे के अंदर आपने क्या किया कि ऊपर जो एंजाइम्स अवेलेबल थे उसमें आपने जो टॉप पोर्शन में इस्तेमाल किए एंजाइम्स वो इंट्रोड्यूस करवाए आपने ई फेसियालिस से, और सेकेंड पोर्शन के अंदर आपने स्ट्रेप्टोमाइसिस निमोनिया के जो है एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया. और पूरे का पूरा आपको जो सिस्टम है वो अब क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपके जो एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो ई फेसियालिस के इस्तेमाल हो रहे हैं, और सेकेंड टाइम के ऊपर आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस निमोनिया के यूटिलाइज हो रहे हैं. उसके कारण आपकी जो है आईपीपी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएमएपी वो इंक्रीज हो चुकी है. आई थिंक 3 फोल्ड्स है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट एट दिस मोमेंट, लेकिन जैसे ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 फोल्ड्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो बीटा कैरोटीन की प्रोडक्शन जो हमारे पास आगे आएगी वो मल्टीफोल्ड्स इंक्रीज होने वाली है. सिमिलरली एंथोसायनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स की, जब हम एंथोसायनिन्स या फ्लेवोनॉइड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम स्कीमेट पाथवे उसको इस्तेमाल करते हैं. स्कीमेट पाथवे के अंदर हमारे पास एक एग्जैक्ट प्रकर्सर है जिसको हम कहते हैं क्यूमेरिक एसिड. क्यूमेरिक एसिड जो है उसको अगर आप बनाना चाहते हैं ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो आपके पास एक DAHP करके एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट आता है जो EP3P पे आता है. उसको आपने जो है कैटालाइज करवाना है ARO1 यीस्ट सिस्टम के अंदर. इसके हमारे पास डिस्टिंक्ट एंजाइम्स अवेलेबल हैं जैसे कि ARO-B,
AROD, AROE, YDIB, AROL, AROK, जो कि E. coli के अंदर आप बेसिकली एडिशन कर सकते हैं उसकी। और जैसे ही आप उसकी एडिशन करते हैं तो आपके पास एक पी कोमैरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, विच डाउन स्ट्रीमिंग के अंदर जैसे ही हम उसको आगे अप स्ट्रीमिंग में लेके जाते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग अप स्ट्रीमिंग के अंदर लेके जाते हैं, अप स्ट्रीमिंग में जैसे ही हम उसको लेके जाएंगे तो हमारा सखाइमेट जो पाथवे है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि हमने बेसिकली पाथवे जो अपने हैं उनको हमने ऑल्टर करना शुरू कर दिया। अगर हम पाथवे ऑल्टर कर सकते हैं तो वी कैन कंस्ट्रक्ट इट एज वेल। The next logical step in the synthetic biology is now what we are going to do is we are going to construct the entire thing. अब कंस्ट्रक्शन जो है, अगर आप कभी मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर जो है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास एक लेक्चर्स होते हैं जो IIT आई थिंक मद्रास कॉन्टेक्ट करवाती है, उसके अंदर कभी आपने उसको स्वयं पोर्टल के ऊपर चेक किया होगा तो उन्होंने ना सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं उसके लिए। वो सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली फीड हो चुके हुए हैं। वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो है वो पूरे का पूरा पाथवे रीजनरेट करके दे देते हैं कि पूरा पाथवे इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो वी आर डूइंग एट दिस पॉइंट एज वेल। सो दिस इज द लॉजिकल स्टेप विच हैज इंक्रीज द थिंग। पहले हमने पाथवे डिजाइन किया, उसके बाद हम पाथवे की पूरी कंस्ट्रक्शन करने लगे। पाथवे कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका नेक्स्ट फेज के अंदर आपका जो है वो डीएनए असेंबली के अंदर आ जाता है कि आप बेसिकली पूरे का पूरा डीएनए असेंबली करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए असेंबली की एग्जांपल आपके पास जो है वो ज़ाइलोनोज के अंदर आती है। ज़ाइलोनोज के अंदर हम जो है ज़ियाक्सिन करके जो है प्रोडक्शन करते हैं, उसके अंदर हमने पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे जो ऑलमोस्ट 8 जीन्स का है वो पूरे का पूरा हमने जो है वो यीस्ट के अंदर बिल्कुल नए सिरे से कंस्ट्रक्ट करके डाला हुआ है। दिस इज स्टडी फ्रॉम 2009। Next is basically multi-locus integration. Now multi-locus integration is generally system जहाँ पर हम जो है जगह जगह से चीज़ों को उठाते हैं, एक जगह के ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं, सेकंड जगह पे मैनिपुलेशंस करेंगे, थर्ड जगह पे मैनिपुलेशंस करेंगे विद डिफरेंट मार्कर्स। तो इसके अंदर एग्जांपल्स तो हैं जैसे कि CRE LXP बेस्ड सिस्टम्स हैं, URA FOA बेस्ड सिस्टम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। I have a slide on this as well. These are those slides. The जो सॉफ्टवेयर्स की मैं बात करने जा रहा था वो बेसिकली BioBrick, BGL ब्रिक है, गोल्डन गेट्स हैं। ये जनरली सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम जो है डीएनए असेंबली करते हैं। मल्टी लोकस इंटीग्रेशन जो है वो भी आपकी जो हम नॉर्मल जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसके आसपास की चीज़ें हैं जिसके अंदर हम मार्कर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्कर रिसाइकलिंग कर सकते हैं, मल्टी मार्कर सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन जनरल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस इज ओमिक्स अप्रोच को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओमिक्स अप्रोच के साथ जो है अगला सिस्टम आगे इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज इन जनरल मोर और लेस अबाउट फ्रॉम द बायोइन्फॉर्मेटिक्स काइंड ऑफ अ प्लेस। Next part is basically engineering, and once we are going to point to this point, so pathway optimization. One small thing which I left is कि जैसे जैसे हम आगे systems को increase करते जाएंगे, हम first step, second step, third step जैसे जैसे हम जो है वो पूरा पाथवे जो है उसे कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। पाथवे कंस्ट्रक्शन के बाद जो है हमारे पास जो है बहुत सारे सिस्टम्स बन जाएंगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बन जाएंगे, पाथवे ए, पाथवे बी, पाथवे सी, और उसके बाद हम पाथवेज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्मॉल एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री अबाउट ibuprofen. ibuprofen, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। ibuprofen के केस के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी कि ibuprofen जो है उसको पहला जो स्टेप केमिकल सिंथेसिस का मेथोडोलॉजी थी उसके अंदर बेसिकली वो 7 या 8 स्टेप्स के अंदर प्रोड्यूस होती थी। तो वो जब 7 to 8 स्टेप्स आप करते थे तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो उसके अंदर विद ईच स्टेप डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो आपकी जो है एफिशिएंसी, इवन इफ द वेरी गुड सिस्टम्स 98%, 90%, 95%, स्टिल यू आर लूजिंग 5%। एंड व्हेन वी आर डूइंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री स्केल के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 1% लॉस इज बिग लॉस। अगर आप 1 लाख किलोग्राम्स की बात कर रहे हैं और उसके अंदर 1% लॉस हो गया आपको, तो इट्स स्टिल बिग चंक। ठीक है,
तो वो पूरे का पूरा लॉस जो है वो आप जैसे जैसे आगे स्टेप्स के अंदर इंक्रीज करते जाएंगे तो दिक्कत करता है। तो आइब्रोफिन के केस के अंदर सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट ये हुआ था कि दे केम अप विद अ 2-स्टेप प्रोडक्शन सिस्टम। 2 स्टेप्स थे और 2 स्टेप्स के साथ चाहे आपकी एफिशिएंसी जो है वो 80% या 85% के आसपास भी थी दोनों स्टेप्स की, लेकिन स्टिल इकोनॉमिकली इट वाज मोर वायबल। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम पाथवेज की बात करते हैं, पाथवेज के अंदर जितना लंबा पाथवे आप इस्तेमाल करेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी। तो कोशिश यही रहती है कि पाथवे को आप जो है जितना छोटा क्रिएट कर सकें उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने क्रिस्पर की बात की होगी, क्रिस्पर की इंटीग्रेशन जो है इसमें हो चुकी है। क्रिस्पर के साथ जो है अभी हमारे पास एक विकेट करके डिज़ाइन आया है, विकेट है उसका नाम। डीएनए हार्परिंग है बेसिकली 50 बेस पेयर्स की। 50 बेस पेयर्स को इस्तेमाल किया गया था एचएज और 23 बेस पेयर्स के Cas9 टैग सीक्वेंस को इस्तेमाल करके उन्होंने जो है एक्सोजेनस डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाए थे और उनकी मल्टी कॉपीज़ को इस्तेमाल किया था बीटा कैरोटीन की सिंथेटिक्स के लिए। इसके अंदर सिंथेटिक जीन्स क्रिएट हुए थे जिनका नाम है CRTE, CRTYB, CRTI। So pathway integration, I think I'm trying to explain that. This is basically engineering of a rate limiting engineering of the metabolic network. So basically अब हमारे पास पूरा उसका एग्जाम्पल्स ही आ गया है। तो जब हम इंजीनियरिंग ऑफ द रेट लिमिटिंग की बात करते हैं बायो पार्ट्स या बायो फैक्टर्स, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोमोटर इंजीनियरिंग। व्हाट इज प्रोमोटर इंजीनियरिंग? Precise regulation of gene expression is critical to the improve production formation and cell growth. अगर हमारे पास excessive gene expression होगी तो generation of the metabolic burden will be insufficient to cause accumulation of the metabolic intermediates. Promoter optimization जो है वो उस चीज़ को solve करती है। इसकी application जो है वो generally dependent होती है कि हमारे पास endogenous promoters कैसे हैं। अगर हम ज़्यादा इनरिच करते हैं प्रोमोटर सोर्सेज को तो नेटिव जो प्रोमोटर्स हैं वो दिक्कत में आ जाते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें एग्जैक्टली ये बात पता चले कि हमारे पास कैसा सैचुरेशन प्रोड्यूस हो रहा है म्यूटाजेनेसिस के साथ। तो इसमें हमारे पास जो है अप्रोच जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम जो है वो रिपोर्टर जीन्स की यूटिलाइजेशन करते हैं और सिंथेटिक प्रोमोटर लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास हाइब्रिड प्रोमोटर डिज़ाइन बनाते हैं। अब इन हाइब्रिड प्रोमोटर डिज़ाइंस का जो अच्छा काम है वो ये है कि आपके पास में जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल्स होते हैं जो उनकी हम कंट्रोल करते हैं कि कितना आप जो है वो ट्रांसक्रिप्शन उसकी अवेलेबल होगी ताकि वी गेट मच मोर कंट्रोल ओवर कितनी प्रोडक्शन होगी हमारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। Second is protein engineering. Now, protein engineering is basically one example for this is could be enzyme engineering कि हम enzyme को engineer कर रहे हैं। Enzyme engineering I think everyone knows about it कि enzyme engineering जो है वो हम enzymology के अंदर जो है वो general inhibitions को पढ़ते हैं या कुछ और चीज़ को पढ़ते हैं तो inhibitions को remove करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उन कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अंदर इननेट जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि कैटालिटिक एक्टिविटी है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं सब। और कितने स्लाइड हैं सर? स्लाइड तो बस 2 ही हैं इसके बाद। ठीक है ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ सर। बस हाँ ये 2 स्लाइड हैं। हाँ 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 कर दीजिए, 1 घंटा होने वाला है। ओके सर। सर थोड़ा लंबा हो गया ना, टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर आप एग्जांपल्स इस चीज की ले सकते हैं कि एंजाइम्स को इंजीनियर करते हैं। एंजाइम्स को हम इंजीनियर कैसे करना चाहते हैं? एंजाइम्स को इंजीनियर करने के लिए हम यूज करना चाहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी जिसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जिसे हम रिड्यूस करना चाहते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशंस को हम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमारे जो इंजीनियर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंजाइम की जो बेसिकली परफॉर्मेंस के अंदर बॉटलनेक्स हैं उन्हें हम रिमूव कर सकें। इसके अंदर हमारे पास अप्रोच तो एक है जिसके अंदर हम डार्विनियन अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं कि डार्विन की अप्रोच कि यूज अ एंजाइम व्हिच इज मोर फिटर टू डू दिस वर्क, तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो जो सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से एंजाइम काम कर रहा है उसी को आप आगे लेके चले शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर सेकंड अप्रोच इस्तेमाल करना चाहते हैं
सेकेंड अप्रोच आपके पास जो है वो ये है कि आप जो है उसके अंदर एंजाइम जो पोर्शन है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो जीन्स उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको आप ऑल्टर करना शुरू करें। इसके साथ हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव व्हाट वी हैव डन इज, अगर आप कभी ग्रेनाइल ग्रेनाइल के बारे में आपको शायद आइडिया होगा, आज जब हम बेसिकली फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं, फ्लेवोनॉइड्स के अंदर हम जब बेसिकली जो केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं या फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर एक एग्जांपल आती है इसके अंदर कि ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट सिंथेटेस, उसकी टोटल आपको जो है वो एंजाइम ऑल्टरनेटिव हमने जो है उसको तकरीबन आर्टिफिशियली तैयार किया हुआ है जो इस्तेमाल में आता है। ठीक है, सिमिलरली एक वही एग्जांपल पीछे से IPP DMAP की, जब हम आइसोप्रेनॉइड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके केस के अंदर जो उनकी एक हमने जो ऑल्टरेशन कर रखी है आइसोपेंटाइल फॉस्फेट काइनेज की IPK की, उसके साथ जो है वो आपके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो आइसोप्रेनॉइड के वो ज़्यादा बनते हैं। तो रेशनल अप्रोच है ये एक बेसिकली कि हमारे को पता है कि कौन सी चीज़ को ऑल्टर करके हमारे को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो हमने पहले तो सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया और सेकेंडरी हमने जो है एंजाइम उसको ऑल्टर कर दिया ताकि उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। तो 97% हमारे पास जो है वो बीटा कैरोटीन की प्रोडक्शन में इंक्रीज हमारे पास मिला। थर्ड, we have done basically one is protein engineering, second is promoter engineering, and third is going to be cofactor engineering. Now cofactor engineering is basically जब हम cofactors को साथ में यूज करते हैं। cofactors के अंदर जनरली हम कौन से cofactors की बात कर सकते हैं? NADPH। तो NADPH को जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे हम इसके अंदर। ये वाले तो किसी के करते हैं अभी। सो NADPH जो है बेसिकली हमारे पास जो है प्रोड्यूस होता है और इसकी जो ओवर सप्लाई है वो उसकी जो सप्लाई है उसकी ओवर एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है हमारे को, जिसके साथ हमारे पास जो है वो हम PPP जो हमारा पेंटोस पाथवे है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। पेंटोस पाथवे को आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। NADPH के लिए दो एंजाइम्स हैं, एक तो POS5 और ZWF1। जो ZWF1 है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस है जो कि यूटिलाइज किया गया है। इन दोनों के साथ आप एफिशिएंसी इंक्रीज जो है वो ऑलमोस्ट 60% एंड 81.4% है। तो जैसे जैसे आप इन एंजाइम्स को जो अंदर एंजाइम्स ऑल्टर कर रहे हैं, इन नए एंजाइम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोफैक्टर के कारण जो है कोफैक्टर की ओवर सप्लाई के कारण वी गेट मच मोर एक्टिविटी। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज, अगर हम बेसिकली एटनोडोट्रॉफ के जो पाथवे है, ED पाथवे हमारे पास, उसका अगर हम ज़ाइमोमोनास मोबिलिस से यूज करते हैं NADPH रीजनरेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए, तो व्हाट वी कैन गेट इज 25% इंक्रीज। 25% इंक्रीज, हम ED पाथवे को 25 फोल्ड्स इंक्रीज कर सकते हैं, which has been utilized. The last and the foremost part of this is transporter engineering. Transporter engineering is generally more or less on the immobilization scale. It is more or less for the downstreaming process. कि downstreaming process के अंदर हमारे को जो है जितना ज़्यादा easy हमारा काम हो सके, जितना हमें कम खर्चे के अंदर उसको करवाने की ज़रूरत पड़े, वो increase करने की चीज़ है। इसके अंदर examples हमारे पास कैरोटिनॉइड्स में ही है। कैरोटिनॉइड्स के एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर एंथोसाइनिन की एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इसके अंदर हम जो है कैसेट इस्तेमाल करते हैं, ABC कैसेट, जो कि ATP हाइड्रोलाइसिस को अफेक्ट करती है और उसके कारण जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट्स बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास जो है वो स्ट्रेन जो है वो बेसिकली एक एक्सपोजर जिसको कहते हैं नॉक्शियस एनवायरनमेंट से बच जाता है और इफ्लक्स हो जाता है, पंप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है सेल सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट is generally engineering of the metabolic pathway. हमने बहुत सारी बातें की हैं कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, कैसे सारा कुछ करते हैं। तो इसके अंदर एक जनरल स्ट्रैटेजी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं पुश पुल एंड ब्लॉक स्ट्रैटेजी। वन इज पुशिंग। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, जैसे सबस्ट्रेट को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट आप पुश करके प्रोड्यूस करवाएंगे उस एक पॉइंट के ऊपर, तो we have an example, I think a diagram is there. So हमारे पास बेसिकली जो है वो टॉप पोर्शन के अंदर हम जो है वो अपना
सबस्ट्रेट की इंक्रीज करने के लिए हम पुश करेंगे सारा कुछ। जैसे जैसे हम सारा कुछ पुश करते जाएंगे, तो पुश करने के कारण हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा। सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज जनरली टू ब्लॉक। जितने भी ऑल्टरनेटिव पाथवेज हैं, उन ऑल्टरनेटिव पाथवेज को आपको या तो ब्लॉक करना है या फिर उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना है। और थर्ड पोर्शन इज पुल। पुल इज जनरली कि नीचे हम जो है, जो हमारा जिस मेटाबोलाइट की तरफ हम बात करना चाहते हैं, उसका एंजाइम इस तरीके का बनाया जाए कि वो एंजाइम जितना ज्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ज्यादा वो काम करना शुरू कर दें। सो एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग होगी पुल पोर्शन के अंदर। पुश पोर्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि नेटवर्क सिस्टम्स के अंदर। हेलो प्रतीक्षा पांडे, प्रतीक्षा पांडे माइक तो आप कर दीजिए, चाहे माइक ऑफ। हाँ वही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। आप कर दीजिए mic। प्रतीक्षा ठीक है जी। एक मिनट, तो जी सर, बंद कर दिया उसने। थैंक यू जी, थैंक यू। सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है ये पुश पुल और ब्लॉक्स का जो है हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे हमारे पास इंट्रा और इंट्रा मॉड्यूलर पाथवेज है। इसके अंदर क्या है कि हम बेसिकली सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं कि एक स्पेशीज अब के थक भी गए होंगे ये सब। बच्चे थक गए सच में लग रहा है। ठीक है, बस सर बस एक पॉइंट रह गया, उसके बाद मल्टीप्लेक्स जीनोम इंजीनियरिंग की बात है। बस जैसे ही मल्टीपल जीनोम इंजीनियरिंग का हो गया, वो नीचे वाला जो इमेज वाला है आपका MAGE वाला जो है, वो MAGE वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो बेसिकली इंट्रा एंड इंट्रा मॉड्यूलर पाथवेज इंजीनियरिंग होते हैं। जो इसके अंदर हम सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक स्पीशीज से उठाया। और आप पॉइंटर इसमें दिखाइए ना, पॉइंटर नहीं यूज कर रहे हैं। पॉइंटर सर इसमें आप लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में जाएंगे तो पॉइंटर का आता है ना, वो कर्सर से लेके आप जो दिखाना चाह रहे हो उसमें पॉइंटर ले जाएंगे ऐसा, तो थोड़ा सा और लगेगा ना इसमें। सर ये वाला मेरे पॉइंटर वाला कुछ ना दिखा नहीं है यहाँ पे। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में कर्सर ले जाएंगे तो वहां बहुत सारा लिखने वाला पॉइंटर का ऑप्शन आता है। नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेफ्ट यहाँ कुछ नहीं आ रहा सर इसमें। ओके आपके उसमें नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये गूगल स्लाइड्स है। अच्छा तो उसमें हो सकता है कहीं नहीं है, लेकिन उसमें भी होना चाहिए स्लाइड्स में। एनीवे ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। मेरा माउस दिखाई देता है उसमें? माउस तो दिखाई दे रहा है शायद। हाँ माउस दिखाई दे रहा है ना, उसी को माउस को ले जाइए कॉर्नर में आप। ठीक है सर। अब जैसे हमारे पास ये पुश पुल है, हमारे पास ये पुश और पुल का जो है सिस्टम आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो पुश एंड पुल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं हम आगे, कि पुश और पुल जो है वो बेसिकली है हमारा जो एक सिंपल मेटाबॉलिक पाथवे, हम जो बायोसिंथेटिक पाथवे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऑल्टर कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी सिस्टम्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगे। हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी, जैसे कि यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बन गया, सेकंड कंपार्टमेंट यहाँ बन गया, थर्ड कंपार्टमेंट यहाँ बन गया। अब इन कंपार्टमेंट्स को हम जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये कंपार्टमेंट इस तरीके से स्टेबलाइज किए जाएंगे कि वंस द सबस्ट्रेट एंटर्स इनटू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, जो पिछला कंपार्टमेंट है दैट डजंट वर्क एट ऑल, उसका जो है उसके ऊपर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो है ये वाले सिस्टम्स के लिए हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए वी हैव सम एग्जांपल्स फ्रॉम दिस एज वेल, जिसके अंदर हमारे पास जो है मल्टी डिमेंशनल ह्यूरिस्टिक बेसिकली क्या है कि बेसिकली हम जीन्स को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि आइसोप्रीन प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है हम सिस्टम जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम इकोलाई। इकोलाई के अंदर जो है इकोलाई का एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो कि MEP पाथवे के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अंदर हम जो है DXS, DXSR और IDI इसको यूटिलाइज करेंगे तो 60% प्रोडक्शन आइसोप्रीन की ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। आइसोप्रीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर forgot this now। तो आइसोप्रीन की प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज कर देता है इसके अंदर। दिस इज यूटिलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग एंथीसिन्स, एस्टाक्सांथिन, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन द लास्ट पोर्शन व्हिच आई एम गोइंग टू डू इन द लास्ट पोर्शन इज मेज। सो मेज इज जनरल व्हाट मेज मीन्स इज multiplex automated gene engineering. So MAGE
and another transformation of this is basically trackable multiplex recombination. So basically this is a technology which was utilized which is being recently developed in this phase. इसके अंदर जो है RNA इंटरफेस बेस्ड RNA लाइब्रेरीज हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपकी जो है वो मॉडिफिकेशंस को कर रही हैं। इसके आगे आपके पास मल्टीपल जो है हमारे पास क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो जी आर एन ए के ऊपर बेस्ड है। ये जो है मेज के साथ इस्तेमाल करके इनको हम जो है वो SSDNA जो है उसको ऑल्टर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास जो है वो है 24 जीन टारगेटिंग जो कि हमने यूटिलाइज की है 1-डीऑक्सी ज़ाइलुलोज फॉस्फेट के लिए बायोसिंथेसिस के उसकी बायोसिंथेसिस के लिए, जिसको इंक्रीज किया जा रहा है। लास्ट स्लाइड इज बेसिकली अबाउट इंजीनियरिंग ऑफ द सेलुलर सिस्टम्स। तो इन सेलुलर सिस्टम्स के अंदर एक जो पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे इंक्रीज करना चाहूँगा, जो बी पोर्शन है वो बेसिकली इज अबाउट co-culturing engineering. Now, co-culture engineering is one of the most important factors which we have learned in recent times from older systems. ये पुराने systems जो हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं जहाँ पे फर्मेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जनरली फर्स्ट फेज को क्रिएट करने के लिए या फर्स्ट स्टेप्स को क्रिएट करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड स्टेप के लिए हम जो है उसके अंदर सेकेंडरी जो सेकंड इनॉकुलेशन करते हैं, उस सेकंड इनॉकुलेशन के बाद जो है वी गेट मच मोर बेटर सिस्टम। अगर हम इसका बिल्कुल ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो it is utilized in soy sauce, it is utilized in vinegar production, it is utilized in many soy based koji based systems, जहाँ से इसकी जो है वो आपको हमें आइडिया मिला है। लेकिन इसके बाद इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो आजकल जो जिस सिस्टम के हिसाब से हो रही है कि इकोलाई है, इकोलाई का हम 4 स्ट्रेन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 स्ट्रेन्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो हमने जो है वो सारा कुछ क्रिएट डाला है। हाँ जी, GRNA की बात की थी मनस्वी जी। 1 मिनट रुक जाएं बस, मैं आपके साथ 2 मिनट में हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, देन वी कैन स्टार्ट विद दैट। यस, डिस्कशन विल स्टार्ट आफ्टर चल रहा है ये वाला, बिल्कुल लास्ट पोर्शन चल रहा है, ठीक है। तो जो है इकोलाई और एस सर्विसिया कल्चर को डेवलप किया गया है नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन इज बेसिकली प्रोडक्शन फ्रॉम डी-ज़ाइलुलोज, जिसके अंदर बेसिकली हम जो है टारगेट प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं 21.16 मिलीग्राम पर लीटर की। तो उसके लिए हमको को-कल्चर इंजीनियरिंग के इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो सिस्टम के अंदर 4 मॉड्यूल्स डाले जाते हैं इकोलाई स्ट्रेन के, जिनके अंदर जो है वो अलग अलग आपके जो है एंजाइम्स डाले होते हैं। वो अलग अलग एंजाइम्स जो इस तरीके से डाले होते हैं कि फर्स्ट फेज के अंदर पहले एंजाइम काम करेंगे, उसके बाद सेकंड एंजाइम्स काम करना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे आपके एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपको एक ही जो है इकोलाई के ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 तरह के स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं। पहला सबस्ट्रेट प्रोड्यूस किया ए इकोलाई ने, उसके बाद बी इकोलाई काम करना शुरू कर दिया, फिर सी इकोलाई काम करना शुरू कर दिया, और फिर डी इकोलाई काम करना शुरू कर दिया। एंड दिस गिव्स अस मच मोर कंट्रोल कि बेसिकली अगर हमारा पहला पोर्शन करना चाहते हैं तो अगर बाई चांस हमारे पास कभी ऐसा सिस्टम भी क्रिएट हो जाता है कि हाँ सी इज नॉट कंपैटिबल विद ए जब काम कर रहा है तो सी जो है वो डेड हो जाएगा, तो उस सिस्टम को क्रिएट बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम इनॉकुलेशन भी लीड कर सकते हैं। सी की जो है इनॉकुलेशन ही हम तब करेंगे जब बेसिकली हमारा बी स्टेज जो है वो काम करना शुरू कर देगा, तो ए की जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाएगी उसके अंदर। तो दिस इज बेस्ड ऑन अ कॉमन सेंस बेस्ड सिस्टम कि ठीक है आप एक एंजाइम पहले एक स्ट्रेन पहले इस्तेमाल कर लें, फिर सेकंड स्ट्रेन इस्तेमाल कर ले, फिर थर्ड स्ट्रेन इस्तेमाल कर ले, फिर फोर्थ स्ट्रेन इस्तेमाल कर ले। तो आपका जो बेसिक पूरा सिस्टम है वो ही सिस्टम इतना सिंप्लीफाइड हो गया कि आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। और उसके अंदर एक और चीज़ है कि कई बार हम जब बेसिकली स्ट्रेन्स को डेवलप कर रहे होते हैं तो स्ट्रेन्स भी इस तरीके डेवलप हो जाते हैं कि एक स्ट्रेन तो काम ढंग से करता है, लेकिन सेकंड सिस्टम जब उसके अंदर हम डालते हैं वो सिस्टम ही काम नहीं ढंग से करता, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, उसके कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये एक नया स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की गई है कि 1 2 3 4 विच इज़ बेसिकली फ्रॉम हिस्ट्री। ये नया नहीं है, पुराना ही है। हमने पुराने सिस्टम को ही ऑल्टर कर दिया कि ठीक है ये वाला सिस्टम इस तरीके से यूज़ करके देखते हैं।